हिंदू या मुस्लिम का हसद मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजामी लगमत में मत छेड़िए। मैडम, हम अपनी जान का दुश्मन के अपना जान कहते हैं, मोहम्मद का इस मिट्टी के हिंदुस्तान कहता है। अब तो मजहब अब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया है। मैडम, आई विल टेक सम टाइम प्लीज। कंप्लीट रीजन, आई एम रीडिंग वेरी फास्ट, आई एम गोइंग वेरी फास्ट। वक्फ बोर्ड, the proposed amendment bill under clause 21 seeking amendment of section 46 of the original act once again empowers the central government to make regulations with respect to so and so. Therefore, state power has been taken away. Does it not violate the federal structure of this country? Every power of the state government has been taken away. Only central will do it. That cannot be, it violates the fundamental character of the constitution. Clause 22 amendment section 47 of the act. The proposed amendment empowers central to call for the audit of any Waqf board by the CAG. How the CAG can make an audit? CAG can make an audit in a case of consolidated fund. CAG can make an audit in a consolidated fund under the constitution. How CAG can make an audit beyond the consolidated fund? This is absolutely illegal and improper. Madam, Section 50 under the existing provision of the Waqf board then comes Section 83. By the proposed amendment, the members of the tribunal have been reduced to 2 and 1 person having knowledge of Muslim law. This has been done, it has been amended. Now the tribunal to order is tribunal to High Court. Tribunal to High Court under appeal. Now it is a statutory appeal. There is no provision for condonation of delay if there is any delay is done. If direct is a statutory appeal, you have not given any power to grant any interim relief to the persons. How can be an adequate remedy? Earlier it was there, one could have gone on Article 226 of the Constitution for a judicial review, and High Court is having the power to condone delay and also to pass an interim order. This power you have also taken away. Therefore, this provision is not an adequate remedy so far as the Waqf property is concerned. Madam, please. Madam, the High Court has not given any power. Madam, 107 and 108. I am going very fast. I am getting very fast. I am not taking even the water even. The proposed amendment has an effect on the decision to replace the survey commissioner. Then the under clause proposed section 107 of the act is deleted and thereby non-applicability of the Limitation Act. That is divorced. How the Limitation Act will be applied? If the Limitation Act will apply, so many disputes will come. This is the intention of the government. Open, सब खुलो अभी खुल दो रास्ता, इंडिया में चला लगा दो, हिंदू मुस्लिम लगा दो, यही तो इंटेंशन है उन लोग का। क्या होगा? This is not correct. This is completely bad. The proposed Waqf Act proposes significant. In Hemant Wajid sir has also criticized the concept of adverse possession as unjust, urging reforms to protect rightful property. Therefore, this is a clearly this is a clear attempt. This is a clear attempt on the part of the bill to curtail the right of the Muslims in our country. ये ठीक नहीं है. Since the bill was introduced to administer the Muslim law for Muslims, so the question of public policy does not arise. लगता है जैसे हमारे कोई सदस्य में बोल रहा हूं. सर, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अप्रैल 1913 में he used this word while moving the report of the select committee to the Imperial Legislative Council. सर, 1913 से 2013 तक भाषा ही नहीं बदली और आज भी भाषा नहीं बदल रही है. हमें ईमानदारी से, और उस समय यूपी और बंगाल ने उसका विरोध किया था. आज यूपी और बंगाल के लोग किस तरीके से साथ में है वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है. इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हाँ, एक प्रश्न बहुत उठाया जाता है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ को क्यों दान दे सकता, ऐसा वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया. मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं इस्लामिक मामलों का बहुत बड़ा आलिम फाजिल जानकार हूं, मगर इस्लाम में बहुत साफ मान्यता है कि जो गैर मुस्लिम है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा. साहब, हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं. हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे
तो वो मदीना में एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साहब जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है? मुस्लिम भावना का सम्मान है, और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोड़िए साहब, जब आप कहते हैं कि हर चीज हलाल होनी चाहिए, तो साहब हलाल करने की प्रक्रिया नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तब वो हलाल होता था। तो मैं पूछना चाहता हूं साहब, काटने के लिए तो हलाल होने के लिए मुस्लिम जरूरी है, और बांटने के लिए बगैर मुस्लिम के भी हलाल होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो हमारी सरकार ने किया है वो मुस्लिम भावना के सम्मान के लिए किया है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं वो बहुत उचित नहीं है। मगर सभापति महोदय, इस वक्त ने कई अद्भुत नजारे दिखाए। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, नहीं जो भगवान को माने ही नहीं। यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव आया है। और सर मुझे एक और चीज नजर आती है, एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे ही सदन के एक सदस्य हैं। और सर हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं, मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, उन्होंने मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्त ने किया क्या हसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। और सर मैं इसके बाद एक टेक्निकल बात करना चाहता हूं। जब इन्होंने टाइम ड्यूरेशन हटा दिया था और बैक में पीछे जा सकते थे, तो मैं पूछना चाहता हूं सर कि जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उसने तो मुगलों सारी हुकूमत ले ली थी, तो उनका मालिकाना हक कैसे हुआ? सर 1707 के बाद तो इस्लामी हुकूमत दिल्ली से खत्म हो गई थी। एक आखिरी मुगल बादशाह शाह आलम के लिए तो बोला जाता था सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी आज का आईजीआई एयरपोर्ट। तो साहब उसके बाद ये गुजरात के सूरत से लेकर लखनऊ तक उनका मालिकाना हक निकलने कहां से लगा? अरे भाई जब दिल्ली को कैप्चर किया था अंग्रेजों ने तो सारी जमीन अंग्रेजों की थी। तो जब मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पावर डीड ट्रांसफर की थी तो पढ़े नहीं थे क्या, या खोखले कागज पर साइन कर लिए थे, या कागज सही था आप खोखला करने की बात है? मैं पूछना चाहता हूं, जब 250 साल तक वो हुकूमत ही नहीं रही तो उस हुकूमत के फरमान की लेजिटिमेसी कैसे हो सकती है? ये मैं कानूनविदों के लिए भी एक फूड फॉर थॉट रखने की बात करता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये किन हुकूमतों की बात कर रहे हैं सभापति महोदय? अगर सूरत नगर निगम पे दावा है मुगल के जमाने का और तमिलनाडु के मंदिर पर अरकाट के नवाब का, सभापति महोदय ये वो हुकूमतें थी जो जजिया लगाती थी, ये वो हुकूमतें थी जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखती थी, ये वो हुकूमतें थी जो गाजी की बात करती थी। क्या भारत के संविधान में उन हुकूमतों के फरमान को सही मान्यता देना सही है? बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यदि आप ऐसी हुकूमतों के फरमान को रखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी सरकार ने अगर बैकडेट से वो बंद किया है तो उस फ्रॉड को रोकने की पूरी व्यवस्था